اور وقف بورڈ جو ہے ٹرسٹوں کے اندر یا سوسائٹیز کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا، جس کے اندر وہ ٹرسٹ کی جائیداد میں مسجد اعلیٰ بھی آتی ہے. وہ ایک مدرسے صراط المستقیم کے نام سے بھی وہاں پر وہ بھی مدرسہ قائم ہے. اب یہاں پر جو چل رہا ہے نظام، اس کو لے کے اگر چلیں گے سب لوگ متفقہ رائے سے، اگر ٹرسٹ کو سب لوگ جو ہے ان کی محنتوں سے جو آج ادارے قائم ہوئے ہیں اسی لوگوں کو لے کے اور اس ادارے کی ترقی میں اگر حصہ ہاتھ بٹائیں گے تو مناسب رہیں گا، بجائے وہاں پر ان کو ہٹاؤ، کیئر ٹیکر کو لاؤ، یا پھر جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کو ہاتھ میں لو. یہ سب جو ہے میں صحیح نہیں مانتا اس کو. بنگلور کے آر ٹی نگر کی مسجد اعلیٰ کے لیے وقف بورڈ کی جانب سے کیئر ٹیکر مقرر کرنے کا فیصلہ غلط ہے، نامناسب ہے. ایڈوکیٹ محمود پٹیل نے یہ بات کہی. الاحمر ویلفیئر ٹرسٹ، جس کے تحت مسجد اعلیٰ اور مدرسہ صراط المستقیم قائم ہیں، ان کے لیے وقف بورڈ نے کرناٹک وقف ٹرائبونل کے آرڈر کی بنیاد پر اس ادارے کے لیے کیئر ٹیکر یعنی نگراں کار مقرر کیا ہے. لیکن الاحمر ویلفیئر ٹرسٹ کی پیروی کر رہے مشہور ایڈوکیٹ محمود پٹیل نے کہا کہ وقف بورڈ کا فیصلہ درست نہیں ہے. پیش ہے جنوبی نیوز سے محمود پٹیل کی تفصیلی گفتگو. مسجد اعلیٰ آر ٹی نگر کے لیے کیئر ٹیکر مقرر کیا گیا ہے، کیا وجہ رہی ایڈوکیٹ صاحب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد اعلیٰ آر ٹی نگر میں جو ہے وہ دراصل الاحمر ٹرسٹ کی پراپرٹی ہے. ایک سی اے سائٹ الاحمر ایسوسیشن، جو پہلے الاحمر ٹرسٹ تھا وہ ایسوسیشن کہلاتا تھا. یہ لوگوں کی جد و جہد سے جو ہے ایک سی اے سائٹ بی ڈی اے سے الاٹمنٹ ہوئی، جس میں الاحمر ٹرسٹ والوں نے سکولز قائم کیے، مدرسہ قائم کیے اور آپ کے مسجد کو یہ لوگ قائم کیے. اور 1988 سے لے کر اب تک الاحمر ٹرسٹ ہی اس کے ایڈمنسٹریشن میں ہے. یہ الاحمر ٹرسٹ کی کوششوں کا نتیجہ آج وہاں پر ایک عالیشان مسجد ہے، مدرسہ ہے اور دیگر ادارے وہاں پر ہے. اور جہاں تک کہ الاحمر ٹرسٹ ہے، ٹرسٹ وقف نہیں ہوتا. اس کے اوپر سپریم کورٹ کے ججمنٹس بھی ہیں اور چند لوگوں نے یہ معاملہ وقف ٹریبونل کے سامنے لے گئے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر ایک اسکیم بنائی جائے، اس کو جو ہے وقف ایکٹ کے تحت گورن کرنا چاہیے اور یہاں پر کیئر ٹیکر اپوائنٹ کرنا. کیئر ٹیکر اپوائنٹ کرنے کی نوبت اس وقت آتی ہے جہاں پر ویکنسی ہے اور وہ اوقافی ادارہ ہے. ٹرسٹ اور وقف میں بہت فرق ہے. جب ٹرسٹ کریٹ کرتے ہیں تو پراپرٹی آف دی ٹرسٹ ویسٹ ود دی ٹرسٹیز. اگر وقف کریٹ کیے ہیں تو اٹ ویسٹ ود دی آلمائٹی اللہ. اب یہاں پر سوال یہ ہے، جب معاملہ عدالت کے سامنے ہے اور یہ جو ہے ایک پری میچورڈ آرڈر ہے، ایک پری میچورڈ پروسیڈنگ کہوں گا، جو کچھ لوگ بائی نیم مشتاق احمد اور کچھ 6 لوگ ان کے ساتھ مل کر جو ہے وقف ٹریبونل کے سامنے ایک عرضی پیش کیے ہیں، جس میں وہ چاہتے ہیں کہ وقف بورڈ کو ڈائریکشن دے، اسکیم فریم کریں، الیکشن کرے، کمیٹی کا فارمیشن کرے وغیرہ. کمیٹی فارمیشن کرنا یا متولی اپوائنٹ کرنا اوقافی اداروں کے لیے. ابھی یہ پراپرٹی لیز پر ہے، اس میں جو ہے بی ڈی اے ایبسلیوٹ سیل ڈیڈ ٹرسٹ کے فیور میں نہیں کی ہے. تو جب پراپرٹی ابھی ٹرسٹ کے نام پر مکمل طور پر رجسٹریشن نہیں ہوئی اور ٹرسٹ کا کوئی وقف نامہ نہیں ہے، ٹرسٹ کوئی ریزولوشن نہیں کیا 2/3 میجورٹی سے کہ یہ پراپرٹی وقف میں رجسٹریشن کرنے کے لیے، یہ انویلڈ رجسٹریشن ہے وقف بورڈ میں. اور وقف بورڈ رجسٹریشن اگر کرنا ہے تو سیکشن 25 آف دی وقف ایکٹ 1954 لے لو،
यहाँ सेक्शन 36 ऑफ द वक्फ एक्ट 1995 ले लो, इसकी रोशनी में अपॉर्चुनिटी देकर अगर वक्फनामा है, अगर कोई एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, वो भी ट्रस्ट के 2/3 मेंबर्स का कंसेंट भी नहीं है और पूरे ट्रस्टीज मिलकर वक्फ बोर्ड जाकर, जहां तक मुझे इसका इल्म है कि तमाम ट्रस्टीज के तरफ से कोई एप्लीकेशन बोर्ड में नहीं गया है और तमाम ट्रस्टीज जो है रेजोल्यूशन पास नहीं किए हैं कि ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट की वक्फ में मुंतकिल करने के लिए ये इनवैलिड रजिस्ट्रेशन है वक्फ बोर्ड के अंदर। और वक्फ बोर्ड जो है ट्रस्टों के अंदर या सोसाइटीज के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकता जब तक कि वो प्रॉपर्टी को मुकम्मल तौर पर कानूनी नुक्ते नजर से उसको रजिस्ट्रेशन ना किया जाए। ये ऐसा रजिस्ट्रेशन जो रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड के तरफ से हुआ है, यानी इस मस्जिद के ताल्लुक से लो या ट्रस्ट की जायदाद का, अभी मालिक जो है ट्रस्ट के फेवर में कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है बीडीए के तरफ से, तो अभी भी प्रॉपर्टी बीडीए की है। बीडीए को और जो है प्रीमियम देना है ट्रस्ट वाले, उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन उनके नाम से सेल डीड होना है मुकम्मल तौर से, उसके बाद वक्फ में रजिस्टर करना नहीं करना वो सब्सिक्वेंट इश्यूज। अभी प्री मैच्योर्ड लीज पीरियड भी जहां तक मुझे ख्याल है 2045 तक इनका लीज पीरियड भी एक्सटेंशन किए हैं ट्रस्ट का, जिसके अंदर वो ट्रस्ट की जायदाद में मस्जिद आला भी आती है। वो एक मदरसे सिरातुल मुस्तकीम के नाम से भी वहां पर वो भी मदरसा कायम है। अब यहाँ पर जो चल रहा है निजाम, उसको लेके अगर चलेंगे सब लोग मुत्तफिका राय से, अगर ट्रस्ट को सब लोग जो है उनको उनकी मेहनतों से जो आज इदारे कायम हुए हैं उसी उन लोगों को लेके और उस इदारे की तरक्की में अगर हिस्सा हाथ बटाएंगे तो मुनासिब रहेगा, बजाय वहां पर उनको हटाओ, केयर टेकर को लाओ या फिर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को हाथ में लो, ये सब जो है मैं सही नहीं मानता इसको। इस प्रॉपर्टी को या इस इदारे को वक्फ में क्यों नहीं रहना चाहिए? नहीं, वक्फ में रहने के लिए कुछ शराइत हैं। अगर किसी जायदाद को हम वक्फ करना है, देखिए वक्फ इज ए परमानेंट डेडिकेशन of a movable and immovable property in the name of Almighty Allah by a person professing Islam for any religious, pious or charitable purpose recognized by Muslim law. This is the definition of waqf covered under section 3R of the Waqf Act or section 3L of the Waqf Act 1954. तो वक्फ का डेफिनेशन देख लीजिए। एक वक्फ अगर करना है तो उसके कुछ एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल a person should be absolute owner of the property, मैं उसका मालिक होना चाहिए। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी को डेडिकेट करने का इंटेंशन होना चाहिए और वो प्रॉपर्टी जो है या मूवेबल हो या इमूवेबल हो, जब डेडिकेट करते हैं तो अल्लाह के नाम पर डेडिकेशन होता है। फिर उसके बाद उसमें मकसद है रिलीजियस, पायस और चैरिटेबल, फिर रिकॉग्निशन बाय मोहम्मद अल्लाह है। ये तमाम एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। Supposing if any one of the element is absent, then waqf ceases to exist. तो ये कानूनी जो मामले हैं, वो वक्फ बोर्ड को भी चाहिए कि इन चीजों के ऊपर गौर करें। जब भी कोई वक्फ रजिस्ट्रेशन होता है तो वक्फ के एलिमेंट्स क्या है डेफिनेशन में, उसको फॉलो करें। फिर सेक्शन 36 ऑफ द वक्फ एक्ट 1995 को फॉलो करें। यानी तमाम उसके अंदर भी रिक्वायरमेंट है एक वक्फ क्रिएट करने के 3 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करना। अगर 3 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करे तो फिर उसकी नौयत क्या है? सेक्शन 36 सब सेक्शन 8 ऑफ द वक्फ एक्ट 1995 अगर आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन वक्फ क्रिएट करने के 3 महीने में करना है। अगर उस वक्त वक्फ क्रिएट करने के टाइम अगर बोर्ड नहीं है तो बोर्ड एस्टैब्लिश होने के 3 महीने में करना है, तो वहां पर एक लिमिटेशन भी है। तो ऐसी सूरत में जहां तक मेरा एक ओपिनियन है कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो वक्फ बोर्ड इशू किया है वो गैर कानूनी है। उसके मामले में जो है उस ताल्लुक से ट्रस्ट वालों ने वो 2 सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को वक्फ ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया है। एप्लीकेशन नंबर 14/2013 एंड एप्लीकेशन नंबर 15/2013 में ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चैलेंज हुए हैं। इसके अंदर जो है नोटिसेस भी इशू हुए हैं
बहरहाल वो केस अपनी जगह है, अदालत का फैसला आएगा, उसके ऊपर जो है गवाह सबूत पेश होंगे, फिर जो है बहस होंगी, उसके बाद कोर्ट अपना फैसला देगा। लेकिन अब ये वक्त से पहले आप जो सवाल कर रहे हैं, तो मेरे ओपिनियन में ये जो सर्टिफिकेट वक्फ बोर्ड ने इशू किया है वो इनवैलिड है, क्योंकि बीडीए से एब्सोल्यूट सेल्डी ट्रस्ट के नाम से होना, फिर बीडीए फिर ट्रस्ट वाले फैसला लेना 2/3 मेजोरिटी के साथ कि इसको वक्फ में मुंतकिल करना या ट्रस्ट में ही रखना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट नवाब यार जंग वर्सेस डायरेक्टर ऑफ एंडोमेंट के केस में रिपोर्टेड जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि प्रॉपर्टी, ए ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर एनी पर्पस, whether for religious, pious or charitable purpose, the property of the trust vests with the trustees. If a waqf is created, it vests with the Almighty Allah. Even waqf board cannot become the owner of any waqf property. तो यहाँ पर सवाल यह है, अगर ट्रस्ट एनी पर्पस के लिए, एनी पर्पस बोले तो वेलफेयर है या चैरिटेबल है या रिलीजियस है या पायस है, जो भी उन्होंने एस्टैब्लिश किए हैं वो ट्रस्ट के कंट्रोल में है और ट्रस्ट के अंडर में चल रही है, मस्जिद भी, मदरसा भी, स्कूल्स भी। अब यहाँ पर एक बात समझने की ये है कि जब ट्रस्ट चला रहा है, इतने सालों से किसी का दावा नहीं था, वक्फ बोर्ड भी जो है 1988 से ट्रस्ट के मामलात में कभी मुदाखलत नहीं किया। अब सडनली कुछ लोग जो है वक्फ बोर्ड को जाके उन्होंने जो है केयर टेकर अपॉइंट करो, अदालत जाके जो है केयर टेकर अपॉइंट करो, जो कह रहे हैं वो सरासर मेरी ओपिनियन में सही नहीं है। क्योंकि चंद मुकामी लोग ही हैं जो वक्फ बोर्ड से रुझे हुए हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो है एक डेमोक्रेटिक तौर पर एक इदारा काम करे। देखिए, अब ट्रस्ट एक डेमोक्रेटिक टाइप पर ही काम कर रहा है, वो आप ट्रस्ट को क्यों डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं? क्या ट्रस्ट इतने सालों से काम अंजाम नहीं दे? क्या ट्रस्ट जो है पेशमाम की सैलरी नहीं दिए, मौजन की सैलरी नहीं दिए, लाइट का इंतजाम नहीं करे, पानी का इंतजाम नहीं करे? अगर कुछ आपकी शिकायतें हैं साफ सफाई के ताल्लुक से, कुछ मरम्मत के ताल्लुक से, तो वो ट्रस्ट से रुजू होकर आप अपनी शिकायत दाखिल करें तो वो लोग उसको अटेंड भी कर लेते। अब कौन सी भी एक बात को जो है हम इशू बना के उसको जो है उनके हाथों से खींच लेना, ये सरासर सही नहीं है। ये कौम के अंदर बिला वजह एक गलत मैसेज जाएगा। हर ट्रस्ट को काम करना चाहिए, उनको काम करने दीजिए। आप मुकामी लोग हैं, आप रेसिडेंट्स हैं, आप मस्जिद में आके नमाज भी पढ़ रहे हैं, आपको अगर किसी चीज से आप जो है आपको कोई तकलीफ पहुंच रही है तो आप जरूर उनसे बताइए कि आपके कंट्रोल में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इदारे चल रहे हैं, यहाँ पर फला चीज की जो है जरूरत है, तो इंशाल्लाह वो लोग करेंगे। वो भी सीनियर लोग हैं, वो भी तो कौम के हक में काम कर रहे हैं। ट्रस्ट बना के कौम के बच्चों को तालीम दे रहे, ट्रस्ट बना के जो है कौम के लिए एक मस्जिद को बनाकर जो है नमाज का इंतजाम किए। क्या वहां पर वक्त पे अजान नहीं हो रही थी इतने सालों से? क्या वहां पर इमामत नहीं हो रही थी, नमाज का एहतमाम नहीं हो रहा था? क्या इतने सालों से जो है तरावी की नमाज का एहतमाम नहीं हो रहा था, ईदेन का नमाजों का नहीं हो रहा था? तमाम चीजें अपनी जगह दुरुस्त थे, इतने सालों से कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन अब चंद लोग जो है शायद उनको वो चाहते होंगे कि किसी ना किसी तरीके से जो है एडमिनिस्ट्रेशन को इनके हाथों से ले लेना, ये सही नहीं है, मुनासिब नहीं है। हम हर इदारे में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ चले, उनका साथ दे, और ऐसे मामला अदालतों को ले जाने से बेहतर है वो मामले को अपने लेवल पे ही खत्म करे। सर, ये मामला अब अदालत में चला गया है और आप इसकी पैरवी कर रहे हैं, ट्रस्ट की जानिब से आप इसकी पैरवी कर रहे हैं, तो फिलहाल क्या सूरत हाल है मामले की? देखिए, वक्फ ट्रिब्यूनल में वक्फ बोर्ड के जो इनवैलिड सर्टिफिकेट्स हैं, इनवैलिड में इसलिए कह रहा हूं, एक प्रीमेच्योर सर्टिफिकेट है, वक्त से पहले। ट्रस्ट का कोई वक्फ डीड नहीं है, वक्फ डीड ये लोग एग्जीक्यूट नहीं किए, इसलिए नहीं किए कि इनके नाम से भी रजिस्ट्रेशन बीडीए से नहीं हुआ, तो आज भी बीडीए की प्रॉपर्टी है। जब तक बीडीए से ये लोग, हालांकि मैं सुना कि ये लोग काफी कोशिशें जो है हर गवर्नमेंट में मिनिस्टरों से, एमएलए से मिलके इसको रजिस्ट्रेशन करने के ताल्लुक से ये लोग भी जो है बहुत कोशिशें चलाए हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ एक सीए सेट नहीं,
कुछ मंदिरों को या कुछ और जो है दूसरे कम्युनिटी के इदारों को भी जो है सीए सीट्स अलॉटमेंट हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि वो लोग कॉमन डिसीजन बीडीए शायद ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को जो सीए सीट अलॉट हुए हैं उसके बारे में कॉमन डिसीजन लेने के ताल्लुक से शायद बीडीए में डिले हुआ है। ये मेरे को ट्रस्ट वालों से पता चला कि ये वजूहात थी। तो ट्रस्ट वाले कंटिन्यूसली ये कोशिश में वो बताए कि कोशिश में जारी है कि वो जो है किसी ना किसी तरीके से रजिस्टर हाँ अपने ट्रस्ट के नाम से रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर वो सोचेंगे कि इसको जो है क्या वक्फ में मर्ज करना। अगर वक्फ में मर्ज करेंगे तो ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, अगर ट्रस्टी रहेगा तो फिर वक्फ वाले मुदाखलत नहीं करेंगे। ये तमाम बातें कानूनी नुक्ते नजर से सोच समझ के करना है, एक सही लीगल ओपिनियन लेके कोई काम में जल्दबाजी नहीं कर सकते। 1988 से जब से ट्रस्ट है उससे पहले वो एसोसिएशन की शक्ल में था तो किसी की मुदाखलत नहीं थी, किसी ने कोई शिकायत नहीं की थी। तो अब जो है कोई शिकायतों को लेके अदालत तक जा रहे हैं या किसी डॉक्यूमेंट का एक बेनिफिट लेके जो है उसको निकालने की जो कोशिश है वो मुनासिब नहीं नजर आती मेरी नजर में। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।